Hello everyone, myself Mohammad Mudassir. I am commerce teacher in Holy Child Academy Jaunpur. So today I discuss about business studies for class 11. So first of all, today I will discuss about human activities. Activity in the part of chapter first. Chapter first is nature and purpose of business. The business studies chapter first is nature and purpose of business. So first of all, today discuss about human activities. What is the human activities? There are two types of human activities. First is economic activities and second is non-economic activities. So what is the economic activities? Economic activities which are undertaken by people with object of earning money. This is known as economic activity. So कोई भी ऐसा वर्क जिसका मेन मोटिव है अर्निंग मनी करना, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सम एग्जांपल आर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन करना, दिस इज मेन ऑब्जेक्ट इज अर्निंग मनी या मेन मोटिव इज अर्निंग मनी, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेलर एंड रिटेलर. होलसेलर और रिटेलर को गुड्स सेल करना, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड वर्किंग इन अ फैक्ट्री में वर्क करना, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिकॉज दिस इज द मेन मोटिव इज अर्निंग मनी, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड वर्किंग एज अ टीचर इन स्कूल, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिकॉज दिस इज द मेन मोटिव इज अर्निंग मनी, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड सेकेंड इज non-economic activities. So what is the non-economic activities? These activities are undertaken with a social and psychological motive. This is known as non-economic activities. में जिसका मेन मोटिव होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन करना. फॉर एग्जाम्पल इज गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू मॉस्क्यू, यानी टेम्पल में जाना और मॉस्क्यू में जाना, इसका मेन मोटिव क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. जिसका मेन मोटिव नॉट अर्निंग मनी होता है, जिसका मेन मोटिव ये होता है कि अर्निंग यानी पैसा कमाना नहीं होता. दिस इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड सम चैरिटी इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दिस मेन मोटिव इज psychological satisfaction. And social service, this is example of non-economic activities. Because non-economic activity, all example is psychological satisfaction and social service. This is known as non-economic activities. Means कोई भी ऐसा वर्क जिसका मेन मोटिव अर्निंग मनी ना होके साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है, सोशल सर्विस करना होता है, दिस इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो economic activities are divided into three parts: business, profession and employment. Economic activities are divided into three parts: business, profession and employment. क्योंकि थ्री एक्टिविटीज ऐसी है जिसके अंदर से हम मनी को रिसीव करते हैं, बिजनेस से एंड प्रोफेशन से एंड एम्प्लॉयमेंट से. सो बिजनेस इज सेलिंग एंड गुड्स एंड बाइंग, द मेन मोटिव इज अर्निंग मनी, दिस इज नोन एज बिजनेस. एंड व्हाट इज द प्रोफेशन? Profession was example of doctor and lawyer, this is a profession. And employment is wage and salary, this is known as employment. So this is economic activity. And और भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में टू स्टील यानी चोरी करना क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नो, दिस इज इनलीगल, दिस इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्योंकि ये भी एक चोरी करना भी एक तरीके से अर्निंग मनी है, बट दिस इज इनलीगल, so this is not a economic activity. So next is economic activity can be divided into three categories. Economic activities can be divided into three categories. So first category is business, and second category is profession, and third category is employment. So what is the difference between business, profession and employment? So first difference is objective. Objective means the business is main objective is earning profit, and profession is main objective is provide service, and employment is main objective is earn income in the form of salary and wage. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? अर्निंग प्रॉफिट कमाना. प्रोफेशन का क्या है
कि सर्विस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लॉयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट में अगर हम कहीं वर्क कर रहे हैं तो या तो हमें सैलरी रिसीव हो रही है या तो वेज मजदूरी कर रहे हैं। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड सेकेंड इज क्वालिफिकेशन। So business is no minimum qualification, and profession is professional qualification or training, and employment depend on the nature of job. So this is a qualification. business में कोई भी qualification की requirement नहीं है, क्योंकि अगर एक 9th और 10th के स्टैंडर्ड का भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सो प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मस्ट है, क्योंकि इसमें एक प्रोफेशनल हमें डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए हमें एक डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर लॉयर के लिए एलएलबी की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। सो क्वालिफिकेशन इज मस्ट इन प्रोफेशन। एंड नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब। एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं, अगर हम वेजेस मजदूरी कर रहे हैं तो हमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर हम ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो हमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज अ क्वालिफिकेशन डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड नेक्स्ट इज रिस्क। सो व्हाट इज रिस्क, बिजनेस है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सो बिजनेस इज ऑलवेज रिस्क। बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, होते हैं। प्रोफेशन इज देयर इज लिटिल रिस्क एंड एम्प्लॉयमेंट इज नो रिस्क। Profession is there is little risk and business is always risk. So business is always risk means policy change and fashion change. Business में मैं always risk इस क्योंकि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने पे बिजनेस को लॉस होता है, एंड अगर फैशन चेंज हो गया तो बिजनेस में ऑलवेज रिस्क इसमें कंटिन्यू रहता है। एंड प्रोफेशन में देयर इज लिटिल रिस्क, इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि डॉक्टर की इनकम बहुत कम ऐसा होता है कि वो डॉक्टर जो है बहुत कम इनकम जनरेट करे। एंड एम्प्लॉयमेंट में इसमें नो रिस्क होता है, क्योंकि अगर एक जॉब हम छोड़ते हैं तो नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो देयर इज नो रिस्क। एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इज इन अ बिजनेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। रिक्वायरमेंट डिपेंड होती है बिजनेस के स्केल पे। अगर स्मॉल बिजनेस है तो स्मॉल रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की। अगर हमारा बिजनेस बड़ा बिजनेस है, बिग बिजनेस है, तो हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट इज प्रोफेशन, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोफेशन। प्रोफेशन में कैपिटल की रिक्वायरमेंट एक लिमिटेड इसमें होती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, यदि हमको पहले इसके बारे में नॉलेज होती है कि डॉक्टर और लॉयर बनने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो देयर इज अ लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोफेशन। एंड नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। सो नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर हमें एक जॉब चाहिए, एक टीचर की जॉब चाहिए, तो हमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। सो देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। And next is reward. So reward for business is called profit. Reward जो मिलता है बिजनेस में उसको हम कहते हैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। एंड प्रोफेशन में जो रिवार्ड मिलता है हमको, जिसको फीस मिलती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो लेते हैं वो फीस लेते हैं, लॉयर जो लेते हैं वो फीस लेते हैं। तो दिस इज अ रिवार्ड फॉर प्रोफेशन इज फीस। एंड नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। रिवार्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट कॉल्ड सैलरी एंड वेज। यानी एम्प्लॉयमेंट का जो रिवॉर्ड होता है, या तो मुझे सैलरी मिलती है या तो मुझे वेजेस। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस।